Now we are moving to one of the main topic, that is working capital management. Can anyone tell me what is working capital? अपने आप को unmute करके बोल सकते हो. What is working capital? कोई बता सकता है working? हाँ? Working capital is the capital which required daily basis in business. Working capital is that capital which is required on day-to-day basis to run the business. ऐसा बोल सकते हैं? Yes, ma'am. ये कैपिटल है जो हमको डे टू डे बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, विच इज रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस ऑन डेली बेसिस. ओके, लेट अस स्टडी. अभी आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये चैप्टर का नाम है. मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. किसी भी बिजनेस का आपको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना है कि आने वाले साल में कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा. दैट इज व्हाट इज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट. ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है. मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. Hoagland has defined working capital as the difference between the book value of current assets and current liability. Simple है. Working capital is what? Working capital is current asset minus current liability. Working capital is what? Current asset minus current liability. Difference between क्या होता है? Minus what? Book value of current asset and current liability. Now what this current word means? Current word may mean either liquid item. Liquid item means anything which is in cash. तो कैश में क्या होता है? सिर्फ कैश ही होता है ना. और अ सर्कुलेटिंग आइटम मतलब जो रोज चेंज होता है. जैसे स्टॉक है, आपका करंट एसेट है, इट चेंजेस एवरी डे. यस और नो? डेटर्स है, वेदर जो डेटर्स आपके स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में रहे होंगे, एंड ऑफ द ईयर में भी वही डेटर्स रहेंगे क्या? नहीं, नए कस्टमर्स बनेंगे जिनको आपने क्रेडिट दिया हो. Creditors will change on day-to-day basis. So what the current word means? Current word means anything which is liquid or which is circulating item. जो item liquid है या फिर circulate हो रहा है उसको बोलते हैं current. So what is working capital? Working capital is difference between the book value of current asset minus current liability. Okay? Clear है? So I can write down working capital is equal to current asset minus current liability. Now what all things comes under current asset? Current asset में क्या क्या आता है? Current asset is comprises of, current asset में क्या क्या आता है? Stock, debtors, cash, और कोई बता सकता है? Prepaid expenses, so cash, bank balance, bills receivable, these are all your current asset. What is current liability? Current liability में क्या आता है? Current liability equals to creditors, bills payable, outstanding expenses, so these are all your current liabilities. Anything else out? Bank overdraft is also a current liability. Okay, these are liabilities which change within a year. ये वो आइटम्स हैं जो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. These items are called as current
डिविडेंड इज नॉट अ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। शाम, डिविडेंड आप किस सेंस में बोल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। डिविडेंड, if it is proposed dividend then it is a current liability। अगर वो proposed dividend है तो current liability है, but अगर dividend paid है तो it is not a liability, it is an expense, appropriation rather I'll say। okay, क्लियर है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी क्या क्या होता है, करंट एसेट में क्या क्या आता है और करंट लाइबिलिटी में क्या आता है। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, now types of working capital। I'll have to erase this। So types of working capital। Working capital on value basis, there are two types of working capital, and on time basis, there are two types of working capital। Value based is gross working capital and net working capital। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब सिंपल है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विद मतलब विदाउट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट विदाउट डिडक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम करंट एसेट। ग्रॉस मतलब वही होता है ना, तो ग्रॉस मतलब माइनस किए बिना, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, करंट एसेट। व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज योर नेट वर्किंग कैपिटल। आपको पेपर में ये ऑब्जेक्टिव आता है कि ग्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है क्या, क्या है, gross working capital means current assets and net working capital means current asset minus current liability, that is your net working capital। समझ में आया, क्लियर है। यस मैम। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल मतलब जो वर्किंग कैपिटल थोड़े टाइम के लिए ही लगने वाला है, दैट इज टेम्पररी। मतलब थोड़ी देर, थोड़े महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, उतने देर के लिए ही लगने वाला है, दैट इज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मीन्स जो वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में हमेशा जरूरी है, परमानेंट है, विच विल नॉट चेंज, उतना तो लगना ही लगना है, मिनिमम ऑफ। ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को सॉल्वेंट रखने के लिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट रखने के लिए जो कैपिटल लगता है दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज ऑल ऑफ अ सडन, अगर अचानक से आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा 2 महीने के लिए, तो वो 2 महीने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी लगेगा उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। सिर्फ 2 महीने के लिए लगने वाला है बस, उसके अलावा नहीं। सो दिस इज व्हाट इज, चलो बोलो व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, किसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। Current asset. Current asset, okay। And what is net working capital, Kunjal, very good। What is net current asset, net working capital, what is net working capital, current, very good Sham, current asset minus current liability, Current and very good, very good। चलो we'll move next, correct।
Now, what are the factors that affect working capital requirement? कौन से factors हैं जो working capital requirement को affect करते हैं? अनुष्का, very good. Nature of business क्या है आपका? What is the nature of business? चलो, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लिसन टू द नेक्स्ट पॉइंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. मुझे वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बिजनेस. अगर मेरे बिजनेस में क्रेडिट पीरियड बहुत ज्यादा है, देन आई विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. मेरे बिजनेस में क्रेडिट होता ही नहीं है, सब ऑन कैश पेमेंट है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सेल करूंगी वैसे ही पैसा आ जाएगा, और जैसे ही पैसा आ जाएगा तो मैं अपनी लाइबिलिटीज पे कर दूंगी. तो आई डोंट रिक्वायर मच ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. साइज ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस साइज छोटा है तो वर्किंग कैपिटल भी छोटा होगा, बिजनेस साइज बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल भी बड़ा होगा. प्रोडक्शन पॉलिसी. अगर मैं सिर्फ साल में 3 महीने ही प्रोडक्शन करती हूँ, तो वो 3 महीने मुझे वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा, बाकी टाइम पे लगेगा ही नहीं. जैसे सीजनल प्रोडक्शन होता है ना, अम्ब्रेला सीजनल है. हाँ, आम आपको सीजनली मिलते हैं, तो आम से रिलेटेड जो भी बनता है, लाइक मैंगो पिकल या फिर मैंगो जैम, ये सब चीजें जो है वो उसी टाइम पे होती है, तो सीजनल है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, लेकिन बाकी टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा. अगर आपकी एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई है, आप बहुत अच्छी तरह से बिजनेस चला रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. अगर आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं है, आपके बिजनेस में बहुत सारा वेस्टेज होता है, आपके बिजनेस में वर्कर्स बराबर काम नहीं करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव बनाते हैं, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं है, देन इन दैट केस वेस्टेजेस ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा. रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया मतलब आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगा. क्रेडिट पॉलिसी. इफ यू हैव अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ, मतलब आप ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा. अगर आपका क्रेडिट पॉलिसी कम है, मीन्स इफ यू गिव वेरी लेस क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट, तो देन यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. सिमिलर इज विद द केस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. अगर आप ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए जा रहे हो, इफ यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस, एक्सपांडिंग योर बिजनेस, तो कैपिटल ज्यादा ही लगेगा ना आपको. ज्यादा, आप पहले सिर्फ बॉम्बे में सेल करते थे, अब आपने सोचा पूरे महाराष्ट्र में सेल करो. पूरे महाराष्ट्र में सेल करना है तो पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. पूरे महाराष्ट्र में सेल करना है तो आपका बाकी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग ये वो. तो देन इन दैट केस यू रिक्वायर ह्यूज कैपिटल. अगर आपके यहाँ एबनॉर्मल फैक्टर्स जैसे स्ट्राइक है, लॉकआउट्स है, इन्फ्लेशन है, ये सब ज्यादा है, देन योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल आल्सो increase. Now this is what is something connected to operating cycle. Now what is this operating cycle? Operating cycle means आप बिजनेस में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो. 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख वापस 1 लाख में कन्वर्ट होके आपको मिलेगा, लेकिन वो कन्वर्ट होके वापस कैश फॉर्म में आने के लिए कुछ टाइम लगता है. 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, वो पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, कैश से गुड्स परचेज किया या रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है. फिर वो परचेज करने का वो बचे हुए कैश से मैंने गुड्स बनाए, गुड्स प्रोड्यूस किए और उसको सेल करने की कोशिश की. फॉर सेल ऑफ गुड प्रोडक्शन किया. अब गुड्स सेल कर रही हूँ, गुड्स कैश सेल्स होंगे तो डायरेक्टली कैश मिल गया मुझे जो मैंने इन्वेस्ट किया था, या अगर क्रेडिट सेल्स है तो मुझे डेटर्स 1 महीना या 2 महीने के बाद देगा, तो 2 महीने के बाद मेरा कैश मुझे वापस मिल गया. जो मैंने 1 लाख लगाया था वो 1 लाख मुझे वापस मिल गया. तो ये 2 महीना पूरा लगा मुझे ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए. कैश इन्वेस्ट किया 1 लाख, वापस 1 लाख वापस कैश में कन्वर्ट होने के लिए मुझे ये 2 महीने लगे. तो व्हाट इज माय ऑपरेटिंग साइकिल? माय ऑपरेटिंग साइकिल इज 2 मंथ्स. समझ में आया आप लोगों को? ये ऑपरेटिंग साइकिल
से हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल. If I know what is my operating cycle, I can calculate my working capital, or vice versa. If I know what is my working capital, I can calculate my operating cycle. Okay. अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने गुड्स परचेज किया और उससे फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 महीने लगे. ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करने का सब करके गुड्स बनने को 2 महीने लगते हैं, और वो सेल करने के लिए 15 दिन, और 15 दिन लगते हैं कस्टमर को मुझे कैश देने के लिए. तो मुझे टोटल टाइम कितना लगा? 2 महीने प्रोडक्शन के लिए, 15 दिन सेल के लिए, और 15 दिन कैश मिलने के लिए डेटर्स से या कस्टमर से. तो कितना टाइम हुआ? 3 महीने लगे. Yes or no? 2 months for production, 15 days to sell, and another 15 days to get it into cash. तो 15 अगेन 1 मंथ होता है, एंड ये 2 मंथ्स. तो मुझे मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का. मतलब जो भी मैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करती हूँ वो 3 मंथ्स के लिए मेरा वर्किंग कैपिटल लॉक हो जाता है. फिर 3 महीने के बाद वापस वो मुझे कैश में कन्वर्ट होके मिलता है. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? यस और नो? भाई चैट बॉक्स है. समझ में आया. वाई सुनो ना, आप लोग के पास चैट बॉक्स है. चैट बॉक्स में अगर सिर्फ वाई भी लिख दोगे ना, आई अंडरस्टैंड कि आपको समझा. नहीं समझा तो एन डाल देने का. सारी लड़कियां लेक्चर में, एक भी लड़के नहीं है. बॉयज आर यू देयर? राहुल को छोड़. मैम हम लोग भी है, मैं भी है तो राहुल. हाँ, तो आप लोगों के आंसर्स नहीं आएंगे तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट यू आर देयर? इज इट क्लियर? यस. So tomorrow, now be prepared. We are starting with the practical problems of this chapter, working capital. Okay. अभी practical part का explanation, accounting explanation बाकी है. कल वो explain भी करूंगी. साथ में I'll start with the practical chapter of practically working capital के problems. आज आप लोगों sheet आप लोगों को मिल जाएगी problem sheet. अब तो लॉकडाउन है तो you cannot take the printouts. लॉकडाउन जैसे ही खत्म होएगा तो प्रिंटआउट्स ले लो. लॉकडाउन है ना बदलापुर में भी? complete lockdown. So Yes, ma'am. you can see problem when I'll be doing. मेरे screen पे रहेगा. Don't worry about it. What you can now, what you should do is you should revise whatever I've taught today. ये जो दोनों PPTs मैंने अभी आप लोग को दिखाई, ये दोनों मैंने क्लासरूम में अपलोड की हुई हैं. If you have not joined the classroom, please join it. गूगल सर्च में जाओ, क्लासरूम ढूंढो, क्लासरूम मिलेगा, उसमें कोड एंटर करो एंड ज्वाइन एज अ स्टूडेंट. इज दैट क्लियर? प्लीज ज्वाइन गूगल क्लासरूम. अगर आप लोग गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन करोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके, प्लीज ऑलरेडी दिस आर शेयर्ड. मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगी 2-4 दिन में. आज फिलहाल मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शीट शेयर कर रही हूँ. ओके, see you all then tomorrow. कल का टाइमिंग I will post it by evening. कल कौन लेक्चर ले रहा है and what are their timings I don't know, so accordingly I'll be posting that. Okay, thank you so much. Have a nice day. Please don't go out of your house and take care of your health. सन्नी आप यहाँ पे हो और you are in your village? सन्नी सिंह विलेज में. विलेज में. किधर हो? गाँव चले गए या इधर ही हो? गांव आ गया मैं. गाँव आ गए. ठीक है, गुड. वहाँ पे सेफ हो? यस मैम. ठीक है, गुड. चलो, ओके. सी ऑल देन. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. स्टडी नाउ. नाउ योर वेकेशंस आर ओवर. प्लीज स्टार्ट स्टडिंग. ओके, चलो बाय. टेक केयर.